Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Umar ki jo caliphate thi, that was the topic which we have started in the last class, and we will resume with that topic. And we have covered three topics in Hazrat Umar's caliphate. They were, what were they? We did Hazrat Umar's election as a caliph. ठीक है? I told you कि वो अपने topic कहाँ से prepare करना है. हमाद बिन निशात की book में ज़्यादा अच्छा explain हुआ है. We need around 5 to 10 lines on election of Hazrat Umar as a caliph, which includes who nominated him, how he was finalized, was there any dispute or any issue when Hazrat Umar died, Hazrat Abu Bakr died, तो आपने उसको वहां से develop करना है, और फिर Hazrat Umar की speech. This is what we totally need actually. उसके बाद जो सेकंड चीज थी वो था हजरत उमर की कैलिफेट में बैटल्स. तो three battles we have discussed about them. One was Namarak. I told you is not asked in exams, but it is good कि आप उसको एक दफा basic जो concept है, क्योंकि you need to connect it. By chance Cambridge give a question, write an account of the battles fought against Persians in Hazrat Umar's caliphate. Cambridge never gave this question. They used to give a selected battle directly. भी मैं आपको questions भी दिखाऊंगा, latest questions भी, और कुछ older questions भी मैं आपको दिखा दूंगा हजरत उमर की caliphate से about battle. So we will talk about that one as well. तो अगर Cambridge पूछता है write an account of Hazrat Umar's battles against the Persians, तो नमरक बिगिनिंग में लाजमी आएगा. नमरक के बाद हमने डिस्कस किया जो डिटेल में था, दैट वाज जसर. We talked about Jasser, or that also known as Battle of Bridge. Then we moved on to another battle, that was Battle of Buer, which was the continuation of Battle of Jasser. So we discussed till here, and then we moved on to next topic, that was Battle of Qadsiya. I showed you the book wording about Battle of Qadsiya, what was the background, the details behind it. Walaikum salam. So we discussed about that part there, और हमने वहाँ पे दो चार चीजें जो डिस्कस की थी. पहले मैं आपको रिकैप करता हूँ. I will go with Battle of Qadsiya topic in the beginning today again, क्योंकि there are two ways to answer this question. One is if it's asked as a part of 10 mark question. How is it asked as a part of 10 mark question? Cambridge एक दफा कादसिया और बोवैर को कंबाइन करके दिया हुआ है, एक दफा कादसिया और यरमूक को कंबाइन करके दिया हुआ है इन 10 मार्क क्वेश्चन. तो डेफिनेटली यू नीड अ लिटिल बिट लेस डिटेल्स ऑन कादसिया कंपेयर टू अगर कादसिया पे अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन है. तो अगर कादसिया पे अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन है, योर डिटेल्स विल बी मोर. So that answer is not enough. So this is the reason why you can see two different answers. मैं आपको उसमें difference भी बता दूं कहाँ पे है, और what is the method to retain and remember the facts about this battle. किसी भी बैटल पे जनरली आपको ना year of the battle, commanders names, reasons behind the battle. I told you in the last class as well. strategy आपकी आ जाएगी commanders की, वो आपने explain करना है. और उसके साथ जो चीज आपके आंसर के अंदर जरूरी है, that is what was the outcome like. Were Muslims successful? Did they face challenge? Were they able to defeat the Persians? Did they advance further or they stayed back at the same place? This is what we need to cover in it. ये एक basic requirement है किसी भी battle की. अब अगर ये 10 mark में अगर depth बढ़ जाएगी, war strategies बढ़ जाएंगी, days of the battle की detail बढ़ जाएगी. Suppose if I say एक छोटा answer, I will say the battle lasted for 4 days. In the first 2 days the enemies were dominant, the last 2 days Muslims were dominant. तो बात finish हो गई. But if it's asked as a 10 mark question, we need to talk about first 2 days में how the enemies were dominant. We need details behind that one. Similarly, how Muslims took over, yeah, they came back in the battle, so we need to know the details behind it. तो यही स्ट्रेटेजी है इस आंसर की. तो हम पहले देखते हैं इस आंसर में मेन एक्सपेक्टेशंस के आपके सामने हाईलाइटेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था. मुस्लिम कमांडर इस वक्त हजरत साद बिन अबी वकास हैं. अपार्ट फ्रॉम साद बिन अबी वकास देयर आर 3 मोर कमांडर्स. उसमें सईद बिन जैद हैं, हजरत मुसन्ना खुद भी इसके अंदर हैं, and you will find some more names here who were leading the Muslim army in that battle. हजरत खालिद इब्न वलीद इस टाइम पे सीरियन बॉर्डर की तरफ थे, तो he was not there in that battle at that time. ठीक है, तो you can talk about that because Khalid ibn Walid originally he was there on the Persian side, then he shifted to the he was on the Persian side, then he was shifted to the Syrian border. तो आप इसको वहां से लिंक कर सकते हैं. What else do we need in it?
strength of the Muslim army. And Muslim army, as per most of the books, that was 30,000. We are talking about Battle of Qadsiya. और मुस्लिम आर्मी जो है वो 30,000 है और इस बैटल की सिग्निफिकेंस 3 वजह से पता चलती है. First, I told you, Hazrat Umar himself wanted to be the commander in this battle, but he did not become the commander because of his shura, the council जो थी, they suggested कि आप नहीं जाएं क्योंकि we need your leadership there. So Hazrat Saad ibn Abi Waqqas and other leaders were interested. 1400 companions इसमें वो थे जो, sorry, इस आर्मी में which generation we are talking about right now? Prophet died in 11 AH, right? We are talking about almost 24, 20, no, not 24, actually it's 15, 16 AH right now. Companions were very important. जो सहाबा थे Prophet sallallahu alaihi wasallam के, we have discussed it in hadith topic. We will come to that portion again. Revision में आएगा कि जो companions थे, they were the main source of the transmission of hadith. तो उनको battlefield में भेजना अच्छी चीज नहीं है. But we were forced to send 1400 companions in the battle. That shows कि इस battle की इतनी significance है, इसको जीतना जरूरी था. Out of 1400, almost 100 companions were those who were participants of Battle of Badr. Badr में total कितने companions थे? Army कितनी थी मुस्लिम? 313. So 1/3 of Badr people are here in this battle. That shows and significance of that battle there. Battle took place. Brief details are here. Right now you can see that there is a brief discussion. Tough battle हुई. पहले रुस्तम जो था, commander कौन था पर्शियंस का इसके अंदर? रुस्तम था. And Rustam was killed in this battle, by the way. So Rustam tried to delay the battle. उसने क्या किया? He wanted to make the Muslim army tired by creating delays and number of things like that. कि मुस्लिम आर्मी के पास resources खत्म हो जाए और मुस्लिम आर्मी वापस भागना शुरू कर दे. But Muslim commander also played a strategy. What strategy they adopted? They attacked on their sources of food. जो उनकी fertile land थी, जो fields थे. It's not allowed in normal battles, by the way, but to create pressure on the enemies, the Muslim army did that when, and Rustam has no option other than coming in the open area to fight. जैसे open fight शुरू हुई, Muslims were victorious. This is the short version of Battle of Qadsiya. अब अगर इतना भी आंसर में लिख देते हैं ना Battle of Qadsiya के अंदर, I can assure you कि आपको 10 मार्क के क्वेश्चन में भी 5 या 6 इतने तो मिलने ही मिलने हैं, which is not bad in Cambridge paper. It is good to reach 9 or 10 there. लेकिन अगर कोई A और B को टारगेट रखता है तो ये आंसर इनफ है वहां पे. लेकिन we are not going to rely on it if it's asked alone as a 10 mark question. जब ये अकेले 10 mark का क्वेश्चन आएगा, आपने ये सेम इंफॉर्मेशन यूज करनी है. डिटेल्स कहाँ पे ऐड होंगी? You can see here I wrote the battle lasted for 3 days and 4 nights. Now we need details of these 3 days and 4 nights. तो आपका कादसिया का बैटल डेवलप हो जाएगा. यू विल टॉक अबाउट, ये तो आउटकम्स है ना, सारी बैटल्स का रिजल्ट वगैरह सारा आ गया. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टॉक अबाउट ईच डे. अब आप डे वाइज देखें, डिटेल यहाँ पे आई हुई है. डे ऑफ अरमास, they attacked, means who attacked? The Persians. The Persians attacked, their elephants created a big trouble. You can see here. So their elephants create a big trouble. How did the Muslims deal with that? We discussed it yesterday. Banu Tamim pricked the eyes of the elephants with their spears and pushed them back. So situation came under control. Saad ibn Abi Waqqas used the, which type of army was used on that day? The archers. Because the archers were needed. ये आपको नीचे 4 mark के question में help करेगा. जो लीडर की स्किल्स हैं कि वो राइट टाइम पे राइट आर्मी को यूटिलाइज करे. वो अगर चाहते तो कैवलरी को भी भेज सकते थे, लेकिन कैवलरी एलिफेंट्स के साथ सक्सेसफुल नहीं रही है, एज वी नो इन द प्रीवियस बैटल. तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास यूज्ड द राइट स्ट्रेटजी एंड ही सेंट द आर्चर्स, और आर्चर्स बनु तमीम के, और बनु तमीम वर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द एलिफेंट्स. सो दिस इज फर्स्ट डे डिटेल्स देयर. मुस्लिम्स हैंडल्ड द सिचुएशन and they were successful. Next day, the day of Aghwas. You will find the day's names different in some books. कुछ books में day का नाम English में है, मैंने इसका Arabic name यहाँ पे use किया हुआ है. So the day of Aghwas is the day when Khalid ibn Walid sent 600 men from Syria. What did I say in the beginning of the class? कि हज़रत Khalid ibn Walid was originally, किधर उनकी ड्यूटी थी? पहले वो पर्शिया में थे. हजरत उमर ने हजरत खालिद बिन वलीद को पर्शिया से कहां भेज दिया? सीरिया भेज दिया. ही वेंट टू सीरियन बॉर्डर. जब वो सीरियन बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहे थे, ही न्यू के मुस्लिम्स नीडेड आर्मी हियर, so he sent 6,000 people here. Where are we now? Here. So with Qaqa, there's someone we are talking about the name Qaqa here. So Qaqa is used here. He is a companion. He is from the Muslim side actually, and he was sent there. This day elephants did not come, so no issues. General fight was there, and Muslims dealt the situation here. Muslims passed the center and they
through they sent the army to the center, like जो उनकी जो कैवलरी है मुसलमानों की उस दिन ज्यादा उस बैटल के अंदर क्या हुई है, यूज हुई है. थर्ड डे में अगेन एनिमीज यूज्ड देयर elephants, war elephants दोबारा आ जाएंगे. This is the third day, and enemies war elephants appeared again. Same strategy. Banu Tamim was called back again. They dealt with the elephants and they pricked their eyes, cut their trunks, and the battle continued till the nightfall. Kaka planned a night attack और रात को severe fight हुई है. And that night is famous as the night of, is it mentioned here? The night of rattling, or in Arabic we say it as Laylatul Harir. Laylatul Harir is the night in which the constant rattling was, where constant fight was going on. And the next day is which day? Which is the name of the battle also. That's the battle of Qadsiya, the day of Qadsiya. The day of Qadsiya is the day when Muslims reach the center of the Persian army. And who was the commander of the Persians? Rustam. Muslims reached there. Rustam realized that we are going to be defeated. He ran away. When he was trying to run away, he was caught and he was killed. Death and killing of Rustam, one of the superpower. Like आपको पता है अगर खैबर एक्सपीडिशन में देखें strongest leader कौन था खैबर में? Jews का. Who was the leader of the Jews? Main leader. Sir, Marhab. Marhab. Similarly, Rustam was the superpower. We can say very strong person for the Persians. उनका backbone था. When Rustam was killed, the Persians lost the hope of victory and they started running away. Himself was running away, he was caught and he was killed. हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है. उसके बेटे सोहराब ने बाद में कोशिश की थी रिवर्ट करने की, टेक ओवर करने की, but we don't have to go with that detail. We just need details here. Siege of Madain is a separate discussion. It's not the part of Battle of Qadsiya. Battle of Qadsiya is asked as a part of 10-mark question. It is asked as a 10-mark question alone. If it is asked alone as a 10-mark question, ये आंसर है. इस आंसर में एक सिर्फ ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है. मैंने इस आंसर में पैराग्राफिंग नहीं की हुई. Don't write the answers without paragraphs. Even स्कूल में टीचर अगर इग्नोर कर भी देता है, कैम्ब्रिज के अंदर स्टूडेंट्स के कईयों के ग्रेड below expectations आए हैं. Those who have not done paragraphing. That is very important thing. So यहाँ पे paragraphing नहीं हुई. Don't think we will write it as it is. We will get grades. No, it is good to make at least 4 paragraphs, but structure them properly. Day wise तो distribution वैसी समझ आ रही है, लेकिन जो शुरू की डिटेल है इसको आप at least 2 paragraph में split करेंगे. नहीं, sorry, 1 paragraph is enough. Then 1 paragraph on day of Armas, 1 paragraph on day of Akhbaz, 3rd day on Umas, and finally day of Qadsiya. And the results of the battle could be discussed in it. Muslim army was 30,000. Enemy army, as per most of the book, was 120,000. 120,000 भी आप इसको कह सकते हैं. So it's a big difference. 4 times army थी, but Muslims were victorious. And this battle gave Muslims a lot of spoils of war. सबसे बड़ा जो स्पॉइल ऑफ वॉर था वो जो पर्शियंस का फ्लैग था, जो दुर्फश करवायानी जो है, वो जो लेपर्ड जो पैंथर स्किन वाला जो है, वो आप मेंशन करें. व्हाट मुस्लिम्स गॉट, यू कैन सी the spoils of war at the end of the battle here. Even I showed you in the yesterday class. This is what Muslims got. 8,500 Muslims got martyred. Even Muslim army ने भी losses face किए थे. And you can see almost 1/3 of the Muslim army suffered. 30,000. अब इसमें ये डिटेल नहीं है कि इसमें companions कितने थे. वो ज़ाहिर है when we go in depth we can find out. But that shows the battle was very difficult. But that is counted as the turning point, or we can say breaking the backbone of the Persians. इसके बाद एक battle और हुई है जिसने purely Persians को defeat किया, वो है Battle of Nehawan. और उस battle को कहा जाता है Fathul Futuh, victory of the victories. क्यों? उसके बाद Persians never stood back again for a long period against the Muslims. Openly वो फिर fight नहीं कर पाया उसके बाद. Yes. Flag dispute cut हो गया था pieces के अंदर, and it was distributed. 100,000 pieces from the Persian banner were made, and each piece was a big flag at the banner. Actually, for the Persians, they already lost because they have lost their symbol of victory. मैंने आपको कल हमाद बिन निशाद की बुक के अंदर उसकी डिटेल दिखाई थी, तो आप यहाँ पे भी अगर देखें, so they have explained about that one. ये रहा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. वो भी शुरू में लिखना है कि ना जो चैलेंज दिया था पर्शियंस ने मुसलमानों के एम्बेसडर के साथ डिसरिस्पेक्ट किया था, एंड दे
put the bucket of the put the bucket of the soil on the head of Muslim delegation. वो चैलेंज जो मुसलमानों ने लिया था, मुसलमानों ने उसको विन करके प्रूव कर दिया कि वी डिजर्व विक्ट्री हियर। ये डिटेल है रिगार्डिंग द पर्शियन फ्लैग। आई थिंक यही वाला है, नहीं ये रहा, लास्ट 3 लाइंस यहाँ पे आ जाती हैं इब्राहिम, ये देख रहे हैं, ठीक है। 30,000 men of his army were slain and Dhulfasheh Karwayani fell into the hands of the Muslims. They have not mentioned what they did it, but actually it was distributed among the Muslims. Muslims got a lot of spoils of war by the end of this battle. और इसमें फर्स्ट टाइम, क्योंकि पर्शियंस वैसे भी फेमस हैं, जो उनकी वीविंग वगैरह की स्किल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, वो भी मुसलमानों की चीज आई। फिर प्लस जो उनके किंग्स हैं, their body was covered with jewels and the precious stones, वो भी मुसलमानों के पास आ गए। So that gave a lot of like spoils to the Muslim. So it was beneficial. बाकी साइड पे additional information है that you can read it. ये book की wording है, that's not. Yes, बोले। सर जो पर्शियन किंग था वो यज़गर्द जो किंग है ना, वो अलग है। We are talking about commander. तो यज़गर्द was not dead. He was still there. He shifted his capital. He moved, by the way, from there, but he was there. Okay. Alright. आगे अब ये जो नेक्स्ट बैटल है, इसकी डिटेल कैम्ब्रिज में नहीं आई हुई है, ये हमाद बिन निशात की बुक में है, अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, जस्ट अ रीडिंग पार्ट। इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम कादसिया टू जलूला। Okay, the next battle which needs to be understood in Hazrat Umar's caliphate against Persian is Battle of Jalula. मैं आपको साथ बता दूं, Battle of Jalula is never asked in May, June. So you can expect Jalula as a 10-mark question in future, which is explained, I think totally ये explanation है। लेकिन निहावन भी पहले इतनी थी। मैं निहावन की तरफ अभी आ रहा हूँ। We have not reached निहावन। जब निहावन फर्स्ट टाइम आई, मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसको चॉइस में छोड़ दिया था, क्योंकि आपके पास जो नोट्स थे टीचर के, जो बुक थी उसमें 6 लाइन 7 लाइंस इन टोटल ऑन निहावन। So what you can do in that answer, but some of my students who attempted that Battle of Nehawan in 2023 May June paper, वो पाकिस्तानी वेरिएंट में आया था, they even got A stars. So how did they get A star? They used a strategy. Of course, you have brief detail, which is enough. ये आपने रखनी है, आपने इससे पिछली बैटल से इसको लिंक करना है, इस बैटल की डिटेल में जाना है, and what were the outcomes of that battle? Did Muslims continued afterwards or not? तो इस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स ने आंसर को मैनेज किया। If someone got 5 or 6 out of 10, level 3 पे भी पहुंच गए, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है ऐसे क्वेश्चन का। So they managed to get A star there. अगर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको लगता है दूसरा क्वेश्चन भी मुश्किल है, लाइक आई थिंक उसके साथ उन्होंने प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री दिया हुआ था, तो कुछ के लिए वो भी चैलेंजिंग एरिया था। So they preferred के बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल चूज कर लेते हैं, and they chose this question there and they managed to get A star. So you can get it, but the main thing is आप wisely उस आंसर को फिर डील करेंगे। तो इतनी डिटेल भी कई दफा फर्स्ट टाइम जो पेपर आता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आई विल नॉट से कि बैटल ऑफ जलूला नहीं आई तो नहीं आएगी, और वो आ सकती है। ये कैम्ब्रिज ने शॉक स्टूडेंट्स को 2023 में देना शुरू किया था। एक ये भी मई जून 2023 में बैटल ऑफ नेहावन हजरत उमर की कैलिफेट से बच्चों ने उसको रटे लगाने शुरू किए। अक्टूबर नवंबर में देखिए बैटल ऑफ नहरवान जो हजरत अली की कैलिफेट में है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उन्होंने उसको उठाकर 10 मार्क्स में दे दिया। सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट दैट थिंग। ओके, तो कुछ भी आ सकता है, बट यू शुड बी एबल टू डील। अब जो प्रॉपर आंसर है सबने रटे लगाए होते हैं, सबके परफेक्ट आंसर होते हैं, यहाँ आपकी स्किल्स चेक होती हैं कि आप कैसे आंसर को डील कर रहे हैं। बैटल ऑफ जलूला में ये टोटल डिटेल है, there is nothing special in it. Hazrat Saad ibn Abi Waqqas, he was successful in the Battle of Qadsiya, big achievement. We discussed it कि he was leading the Muslim army from sick bed, और वहीं से उन्होंने मुस्लिम आर्मी को कमांड किया। मुस्लिम्स वर विक्टोरियस, बिग विक्ट्री। हज़रत उमर के पास न्यूज़ पहुंची, फिर उसके बाद मुस्लिम्स मूव्ड फॉर जलूला। पर्शियंस की एक हैबिट थी अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए, व्हाट दे यूज्ड टू डू इफ देयर इज अ फाइट और द वॉर गोइंग ऑन। हजरत सलमान अल फारसी ने भी वो सजेशन दिया था, तो साइड पे मतलब खंदक या ट्रेंच डिग करते थे, लेकिन नॉर्मली वो जो ट्रेंच डिग करते थे, जस्ट ट्रेंच नहीं डिग करते थे, दे यूज्ड टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द फोर्ट्स। वो पहले फोर्ट्स बनाते थे और आउटर साइड के ऊपर ट्रेंच डिग कर देते थे। उसका फायदा क्या होता था, जितनी देर में एनिमी नीचे डिच से फोर्ट्स को डैमेज करने के लिए पहुंचता था, देयर आर्चर्स डिस्ट्रॉयड द एनिमीज ऑफ द आर्मी। वो ऊपर से बोल्डर्स
और फायर बॉल्स और इस तरह की चीजें थ्रो करते थे, जिसकी वजह से वो जो एनिमी है वो आपकी फोर्ट्स को डैमेज ही नहीं कर सकता था। उस वक्त उनके पास टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह की सारी नहीं थी, सो दे हैव टू रीच द बॉर्डर, दे हैव टू अटैक on the walls of the forts. So that was challenging. So this challenge Muslims faced in this battle. You can see here the Persians, अगर आप इसकी fourth line देखते हैं, the Persians dug ditches to defend themselves. Hashim marched with his army, he's a Sahabi, with his army from Madain, and after defeating the Persians at Jalula, he laid the siege to the city, which lasted for 7 months. अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप थोड़ा सा सीज करेंगे, वापस स्टेप बैक कर लेंगे, या यू विल वेट कि एनिमीज का जो फूड रिजर्वायर है वो खत्म हो जाए और एनिमीज खुद से सरेंडर कर दें। दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या आप खुद वापस चले जाएं। बट मुस्लिम्स डिड नॉट लूज होप, दे स्टेड देयर एंड दे वेटेड अंटिल एनिमीज वर फोर्स्ड टू कम आउटसाइड इन ओपन एंड जनरल फाइट वाज देयर एंड मुस्लिम्स डिफीटेड। और फिर उसके बाद मुसलमान जो है वो ये हेपेटाइटिकल आप कह लें, उसका एक प्लान है कि किस तरह से मुसलमानों ने उसको डील किया। एंड मुस्लिम्स बाय द वे फोर्स द एनिमीज टू कम आउटसाइड, व्हेन दे केम आउटसाइड fight and later they agreed to pay jizya, so the area came under the control of the Muslims. इसमें details ज़्यादा नहीं है. If you see my handout, you will see also details about Battle of Jalula. This is Battle of Jalula in my handout here. यहाँ से आपको ये मिल जाएगा. I think इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा details add की हैं compared to the book, so you can use this information also, right? इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, अगर बाय चांस 10 मार्क्स में आएगा भी तो इट विल हेल्प यू टू मैनेज द सिचुएशन, क्योंकि इसमें ना मैंने बैटल की डिटेल्स ऐड की हैं जो बुक में हमाद बिन निशात में नहीं है। आप ऑल्टरनेट और भी सोर्सेज को यूज कर सकते हैं टू डेवलप इट। हाउ मेनी बैटल्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ अगेंस्ट पर्शियंस? नमरक इतनी दफा एग्जाम में नहीं आई, आई टोल्ड यू उसका वेटेज अगर प्रिपरेशन में देखा जाए तो इट्स 10% राइट नाउ, और मे बी लेस देन दैट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बैटल ऑफ जसर ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैम्ब्रिज में कैसे आए हैं। थर्ड द वर्ड कादसिया ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट बैटल ऑफ जलूला। राइट नाउ अभी हमने जो डिस्कस किया वो बैटल ऑफ जलूला है, बीच में सीज ऑफ मदाइन भी है, इफ यू वांट यू कैन गो विद दैट वन। The last battle against the Persians is Battle of Nihawan. There is one false prophet who was the threat in Hazrat Abu Bakr's caliphate to accept Islam, and there is a false prophet who no, not Aswadansi, Tulaiha, good. Tulaiha is the false prophet. आप यहाँ पे उसकी information add कर सकते हैं। In this battle of Jalula, अगर आप अपने points को थोड़ा strong करना चाहें, तो one of the false prophet who was the enemy of Islam later converted to Islam. He joined the Muslim army and he fought from the Muslim side there. अब आ जाता है निहावन। पहले निहावन पे ना इस आंसर के ऊपर स्टूडेंट्स का A स्टार आया था, which you can see here. तो बट दे डिड नॉट राइट दिस ओनली, क्योंकि जब मेरा ओरिजिनल हैंड आउट था, डॉक्यूमेंट था, उसमें ये और बुक में भी इतनी डिटेल थी बैटल ऑफ निहावन पे, बट द स्टूडेंट मैनेज टू डील विद इट। उससे पहले क्या सिचुएशन हुई, निहावन का ब्रीफ डिटेल, एंड दे मेंशन कि हजरत उमर की मार्टायरडम हो गई थी इस बैटल के बाद, सो देयर वाज नो मोर बैटल आफ्टरवर्ड, सो दे मैनेज टू डू दैट वे। अभी अगर जलूला पे ऐसी चीज आती है तो आपने इसी तरह से टेक्निक लगानी है, जस्ट डोंट रिलाई ऑन जलूला ओनली, व्हाट हैपेंड बिफोर, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स करके आप इसको लिंक कर सकते हैं। This answer is not enough for 10 mark question on Nihawan. अब इसके लिए एक तो हमाद बिन निशात की बुक में डिटेल अच्छी है, which I have added here. ये निहावन की डिटेल हमाद बिन निशात की है, but if you don't want to do that, you can go with this one. This is on Battle of Nihawan. ये कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आने के बाद से मैंने डॉक्यूमेंट ऐड किया, पहले नहीं था मेरे इसमें नोट्स के अंदर, क्योंकि we were never expecting, और आप ऐसे क्वेश्चन CI में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे किंग्स आ गए, इसी तरह से oppose Islam, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बट दे कैन आस्क यू गिव एन अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ people of Arabia.
So you can think that question there in that way. So it's not a big deal. Plan it accordingly. इसे हम कह सकते हैं unexpected questions to be expected. तो ये कैम्ब्रिज ने एक एक्सपीरियंस करवाया हुआ बच्चों को निहावंत का. And now what did they do? They just added few details in it. ज़्यादा difference नहीं है. मुस्लिम आर्मी इसमें ऐड कर दी जो पहले मेंशन नहीं हुई थी. पर्शियंस की आर्मी यहाँ पे मेंशन की है. दिया हुआ सारा मुस्लिम आर्मी ने ना कैसे किया. What the Persians did, you can see here. ये देखें, same way strategy है. The Persians relocated themselves by a ravine. Ravine is a valley type of structure there, and fortified themselves behind trenches. अब मुसलमानों को फोर्ट तक पहुंचने के लिए एक स्लोपी एरिया पे क्लाइंब करना है, देन अपने फोर्ट्स को डैमेज करना है, which is not possible. मुसलमानों ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की. फाइनली दे डिसाइडेड कि हमने कुछ भी हो रिस्क लेना है. जैसे होता है ना गाड़ी स्पीड से लेके यहाँ ऊपर चढ़ाते हैं पूरा have to be made. अब आप हॉर्स को अगर भागते हुए reach the walls, you need help for that one. लेकिन उस बीच में जो ऊपर से आर्चर्स और बोल्डर्स गिर रहे थे, जो हॉर्सेस इंजर्ड होके गिरे, उनका ब्लड स्पेल हो गया जगह जगह. तो जो अब कमिंग जो हॉर्स आ रहे हैं, they will start slipping there, and when they will slip there, automatically the horse rider will also get injured in it. And this is the reason how Muslims face tough challenge. यहाँ पे ये challenge discuss हुआ है. It was decided that the Muslim cavalry would advance and attack the trenches and then withdraw to lure the Persians. और जब आप उनकी walls पे attack करेंगे, what they will do? They will try to come outside to defend their borders. When they will come outside, you will attack on them. This was the plan. Initially, it did not work. There was a challenge. Who was the Muslim commander? His name is here. This is important thing. Noman ibn Mukrim. Persian commander का भी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, but there is a Persian commander. Shah करके कुछ है. Let me check 1 second. I think I have his name somewhere. I found it. Persian's commander's name, Mardan Shah. Okay, so the Persian commander name was Mardan Shah. Mardan is a place in Pakistan also. Okay, so Mardan Shah is the one who was a Persian commander, and he planned a big strategy for that one. That is the last battle against Persians during Hazrat Umar's caliphate. But you can see here most for sword and began the blood soaked on any smart, but victory of the Muslims. That is tricky. So I will show you. It's there in my handout later on. Okay, why this battle is counted as Fathul Futu, the victory of the victories. क्योंकि यहाँ से मुसलमान इराक को क्रॉस कंट्री आप इराक को क्रॉस करते हैं. इराक, Persian Empire was covering not only Iraq at that time, and they were so Muslims reach यहाँ तक क्लियर हो. और इसमें जो थोड़ी सी चैलेंजिंग है वो कासिया और निहावंद है. जसर और बुवैबा इजी. आई एम श्योर यू कैन डील विद दैट वन. आप उसको मैनेज इजीली कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स अबाउट दीज टॉपिक्स हियर. तो आपके सामने मई जून 2022 का पेपर है और नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट है. पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन नहीं है आपके में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन. राइट अबाउट द बैटल ऑफ ब्रिज. ये मैंने मार्किंग स्कीम खोली हुई है, तो क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आपको आंसर तो नहीं मिलता. क्वेश्चन आएगा
Battle of Bridge and the Battle of Boab fought again during the Caliphate of Hazrat Umar. So you will write on both battles. आपने जितनी details अभी पढ़ी almost सारी वही हैं. Year in which the battle was fought. ठीक है? Then commanders' names. In my handout it was written Bahman, right? I told you can write Bahman, you can see both are okay. Some sources say that the Persian commander was. So don't worry about it. आपकी बुक में अगर बहमन लिखा हुआ it's fine. आपकी बुक में अगर रुस्तम लिखा हुआ बहुत, क्योंकि दोनों कमांडर सर्वाइव कर गए थे, डेथ किसी की नहीं हुई थी. Muslims lost in that battle. And who was the Muslim commander who got martyred? अबू उबैदा, हजरत अबू उबैदा सक़फ़ी. तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ भी है. कमांडर्स की डिटेल आ गई, स्ट्रेटेजी आ गई, देन बैटल ऑफ बोएब आ गया. और हजरत मुसन्ना का नाम एग्जामिनर आपके आंसर में लाजमी ढूंढेगा. ठीक है? जो नेक्स्ट कमांडर था जिसने चीजों को हैंडल अप किया वो आपने लिखना है. फिर नेक्स्ट बैटल एंड देयर द मुस्लिम्स. यहाँ पे स्ट्रेंथ है. आई वाज टेलिंग यू कि बुक्स में मोस्टली पर्शियंस की स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई बोएब के अंदर, बट यू कैन सी द मार्किंग स्कीम. मेहरान मैंने आपको बता दिया था, पर्शियन कमांडर था, वो गॉट किल्ड इन दैट बैटल. सारी डिटेल्स वही हैं, बल्कि वो आंसर बेटर है, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज जस्ट एन आउटलाइन फॉर दैट. वन क्वेश्चन अबाउट द बैटल्स ड्यूरिंग हजरत उमर कैलिफेट इज बोएब एंड ब्रिज टुगेदर. इट्स वेरी इजी. स्ट्रक्चर करें, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लान टू कम टू दैट क्वेश्चन, बट वी विल सी इफ वी आर एबल टू डू दैट टुडे और नॉट. दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर. मैं हजरत उमर की रोमन्स के अगेंस्ट बैटल्स फौरन आज नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि बैटल्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बच्चे कासिया और यरमुक मिक्स अप करने लगते हैं. मैंने कई बच्चों के आंसर चेक किए. स्टार्ट हो रहा है पर्शियंस के साथ लड़ाई में और एंड पे रोमन किंग की डेथ हो जाती है उस बैटल के अंदर, या कभी उलट होता है कि वो स्टार्ट किया हुआ है रोमन्स के अगेंस्ट और एंड पे जाकर रुस्तम मारा जा रहा है उस बैटल में. तो रुस्तम का तो कोई लेना देना नहीं है रोमन्स के अगेंस्ट. तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो चीजें ओवरलैप नहीं और मिक्सअप आपने नहीं करना. तो ये अभी हम आते हैं इसकी तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मई जून 2023 ये पाकिस्तानी वेरिएंट है और ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी दिखाई है. दैट इज मार्किंग स्कीम बाय द वे. और इतनी डिटेल है इस आंसर के अंदर जो बुक्स में भी नहीं है. तो यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम हियर. दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली, इट्स मार्किंग स्कीम व्हिच विल हेल्प यू. इवन इट्स फाइन, आप इसको एज इट इज भी लिखेंगे. आई कैन से 7 या 8 आपको इसी में मिल जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स इनफ है जो इस आंसर के अंदर रिक्वायर्ड है. अच्छा, दैट इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसका पार्ट बी जो है, why this battle is counted as Fathul Futu, the victory of the victories, जो है वो आपने यहाँ पे उसकी रीजंस को क्या करना है, डेवलप करना है. और रीजन क्या है, मुस्लिम्स वर एबल टू एक्सेस टू इस्फहान, खुरासान, ये सारे इलाके कहाँ पे हैं? ईरान के अंदर है. तो यू कैन टॉक अबाउट दैट वन. एंड इवन दे रीच द बॉर्डर्स ऑफ द सिंध एरिया. सिंध मुसलमान, सिंध किस कंट्री में, किस कंट्री में? पाकिस्तान में. ठीक है. और इस्लाम सिंध के अंदर एंटर हुआ है उमैयद डायनेस्टी में. हजरत उमर की कैलिफेट में नहीं हुआ, बट मुस्लिम रीच द बॉर्डर ऑफ सिंध एट दैट टाइम. तो ये भी आप ले सकते हैं, आउटलाइन द रीजन ऑफ द सिंध लेटर ऑन. एक्सटेंसिव डिटेल्स, स्ट्रक्चर्ड आंसर, और वो क्वेश्चन वाइज वेरी करता है. एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ट आंसर आपका 3 साल पहले लेवल 4 था. पॉसिबली इस साल वो आपको लेवल 4 के मार्क्स ना दे, क्योंकि हर साल कैम्ब्रिज की एक्सपेक्टेशन उस क्वेश्चन के अंदर बढ़ती जाती है. जो क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम आया, आप उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे से भी लिख लें तो आपको आंसर में मार्क्स मिल जाते हैं. बट इफ यू आर राइटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन 4 मार्क्स ए में ही बता रहा हूँ. एक आपको ये बता रहा हूँ, वो एक्सटेंसिव डिटेल वेरी करता है कि वो कितनी दफा कैम्ब्रिज में आया हुआ है और कितनी डिटेल्स ऐड हो सकती हैं. मैं अगर आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ ताइफ के इवेंट की. ताइफ में पहले बच्चे एक नॉर्मल आंसर लिखते थे, उनको A स्टार मिल जाता, मतलब मींस के दे गेट लेवल 4 in it. अब नाउ कैम्ब्रिज इज एक्सपेक्टिंग मोर डेप्थ इन इट. आप एक छोटी सी भी फैक्ट को छोड़ेंगे, ग्रेड आपका इंपैक्ट कर जाएगा. यू माइट बी सेइंग इतना अच्छा आंसर लिखा, बस सिर्फ यही छोड़ा, वहां पे सिर्फ वही छोड़ना आपका ग्रेड गिरा देता है. और इन क्वेश्चंस के अंदर कई दफा कोई चीज छूट भी जाती है, यू विल मैनेज टू सिक्योर A स्टार स्टिल देयर, और आपको लेवल 4 मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स इतनी हाई लेवल के आंसर्स नहीं लिख रहे होते, या फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है तो भी इस तरह. तो अगेन जनरल रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी है कि कोर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी पूरी हो रही है, जैसे मैंने बैटल की आपको आउटलाइन बताई है और जो मार्किंग स्कीम के अंदर चीजें हैं. बट दीज थिंग्स शुड बी डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन्ड विद सपोर्टिंग रेफरेंसेस, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, पैराग्राफिंग के वहां पे क्या आपको रिक्वायर्ड होता है. ठीक हो गया. एक और क्वेश्चन देख ले. ये क्वेश्चन है, जिस साल ये पेपर आया
और ये जिन स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे याद पड़ता है ये वो साल है जिसमें मेरे पास कुछ मिडल ईस्ट से भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मिडल ईस्ट में ये वाला वेरिएंट मिडल ईस्ट में ऑफर होता है 2-1 जो है। मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या किया, द स्टूडेंट सेड कि मैंने सर दोनों बैटल्स बड़ी परफेक्टली लिखी हैं, मुझे कादसिया भी आती थी, यरमूक भी आती थी, मैंने परफेक्टली लिखी। आई सेड क्वेश्चन रीड किया है, उस वक्त तो क्वेश्चन बच्चों के पास नहीं होता, ज़बानी जहन में नहीं होता है। बाद में जब ये पेपर आया तो दैट स्टूडेंट रोट ऑन 2 बैटल्स which is not required. Question is asking you events of one of the following battles. तो I told you कई दफा ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको पता है मुझे दोनों आती है, मैं बड़ा परफेक्ट लिख लूं, आपको वहां पे दोनों लिख के शायद 6-7 मार्क्स मिले हों, क्योंकि आपका जो एक बैटल भी फुली एक्सप्लेन नहीं है वहां पे, क्योंकि आपने दोनों को लिखने के चक्कर में टाइम कंज्यूम किया। तो नाउ ये जो बैटल ऑफ कादसिया का डिटेल्ड आंसर था वो आपने यहाँ पे वो वाला लिखना है, क्योंकि अब आप 10 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। अब कैम्ब्रिज ने डेफिनेटली मार्किंग स्कीम दोनों, you can choose any of the battles whatever is more comfortable to you, जो आपके लिए more convenient है। आप कोई भी बैटल वहां से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी बैटल चूज करनी है 10 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमने यरमूक डिस्कस नहीं की हुई, हमने कादसिया डिस्कस किया हुआ, ये कादसिया की आउटलाइन है, की पॉइंट्स आपके सामने है जो आर आस्किंग 4 मार्क्स के अंदर। ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रॉपर डेवलप्ड होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ये कई होंगे ना सर के ऊपर से भी निकल रहा होगा, क्यों? बैटल्स और ऊपर से जब हम जबानी लेक्चर में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं ये याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो आपको इसको मेमोराइज करने के 2 मेथड हैं, या तो आप कोई एक मॉडल आंसर से इसको याद करके लिखें, या आप एक आउटलाइन बनाएंगे। आपके पास 10 to 15 फैक्ट्स होने चाहिए अबाउट दैट बैटल। सपोज आपको किसी ने कहा आपने ये आर्टिकल रीड कर लिया, ये बुक 6 पॉइंट, नाउ राइट 10 या 15 फैक्ट्स अबाउट इट, वो आपको याद रहेगा। अगर आप इसको सुन के अगले दिन आएंगे आपको कुछ भी नहीं याद होगा एक्सेप्ट 2-3 चीजों के अलावा। तो ये लेक्चर देना, पढ़ाना, एक्सप्लेन करना चैलेंजिंग होता है और बच्चों को समझ ही नहीं आता, और मोस्टली 3-4 दफा करने के बाद भी टीचर पूछेगा आपको समझ आया, उस वक्त लगेगा समझ आ गया, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे आपको पता ही नहीं क्या लिखा। तो अगेन दैट नीड्स अ प्रैक्टिस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड एज वेल। की पॉइंट्स आपने लिस्ट डाउन करने, फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये अभी आया हुआ है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन किया हज़रत उमर का। राइट एन अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ बुवैब एंड बैटल ऑफ कादसिया फॉट इन द कैलिफेट ऑफ उमर। सो अब आपके पास 2 बैटल्स आ गई हैं, और इसने बुवैब और कादसिया पूछी भी, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज दे आर लिंक्ड। बुवैब की ही विक्ट्री के बाद मुस्लिम्स मूव फॉर द कादसिया, लेकिन आप चाहें तो बुवैब से पहले थोड़ा सा जसर को डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? बुवैब इज डिपेंडेंट ऑन जसर एक्सप्लेनेशन, तो डोंट गो इन डिटेल ऑफ जसर, ब्रिज की डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपने बताना है कि ये लिंक्ड कैसे है प्रीवियस बैटल के साथ। तो आपने वहां से लिंक करना है, फिर आपकी ये बुवैब की डिटेल आ जाएगी, कादसिया की डिटेल आ जाएगी, ये सारी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन कितनी बैटल्स पे फोकस हुआ, बार बार अभी घूम फिर के पर्शियंस के अगेंस्ट ब्रिज, बुवैब, दोनों भी आ गए वहां पे, ब्रिज या जसर एक ही चीज है, बुवैब देन कादसिया एंड देन नेहावंद। ये 4 बैटल्स आपको परफेक्ट आनी चाहिए। डू देम इन अ वे कि अगर 10 मार्क्स में अकेले आए तो भी आप कर सकें, अगर आपको कंबाइन करनी पड़े तो यू आर एबल टू मैनेज द इंफॉर्मेशन इजीली, तो भी आप उसको वहां पे इजीली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट दैट, लेट्स सी। और दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर, हम इसकी तरफ अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन उससे पहले देयर आर सम मोर क्वेश्चंस अबाउट हजरत उमर्स कैलिफेट व्हिच आर हियर, लेट मी शो यू। Can we get a 10 mark question about Tabarak or Tifla? अभी तक नहीं आया, it could be asked, it can be, this is what I told you, we have no like fixed rule कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन बैंक है तो थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, ओल्डर क्वेश्चन बैंक भी इसमें आ जाता है। वैसे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट पेपर से भी दिखा दिए, लेकिन ये कैम्ब्रिज के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट ईयर्स के अंदर है। और बैटल्स अगर आपको मुश्किल लगती हैं हजरत उमर की कैलिफेट में, तो आई विल सजेस्ट यू 3 बैटल्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक आपके पास है कादसिया, यरमूक, और थर्ड है जसर, जो आपको बुवैब में भी हेल्प करेगी। ये 3 बैटल्स आपने नहीं छोड़नी। आप उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्टली करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिखाए, 10 मार्क्स के आए हुए हैं, एक रिसेंट आया हुआ। अच्छा, उसमें क्वेश्चन की वर्डिंग में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन मेमोराइज करके भी मार्क्स नहीं मिले प्रॉपर, क्योंकि उस क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ था कॉमन पर्सन, तो वहां योर फोकस विल बी ऑन सोशल रिफॉर्म,
उमर और इस तरह के रिफॉर्म्स जो एक कॉमन पर्सन को बेनिफिट कर रहे हैं, अगर आप वो रिफॉर्म्स लिख रहे हैं एक्सपेंशन पॉलिसीज के, तो वो कॉमन पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है, यहाँ पे भी वो होगा नहीं, ये वाला नहीं है, अभी लेटेस्ट में वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो वहां से हम इसको करेंगे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट वन? वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स नाउ। अब तुम्हारे की कैलिफेट में एक है वॉर अगेंस्ट रोमन्स और एक है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड टॉपिक इज मार्टारडम ऑफ हजरत उमर। Martyrdom of Hazrat Umar is connected with war against Persians. The person who attacked on Hazrat Umar was from Persia. And what was the issue between Hazrat Umar and that person was he demanded some relaxation in the payment of the taxes, and Hazrat Umar was strict in that. He said that rule is equal for everyone. तो अगर आप चाहे martyrdom of Hazrat Umar को पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि वो Persians के साथ ही है। Battle of Nehawan में that person came as a captive of war. एंड हिज नेम वाज अबू लुलु फिरोज, फिरोज के नाम से वो फेमस था। और उसका कंसर्न क्या था वो खैर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आफ्टर वी आर डन। हजरत उमर पे उसने अटैक इसी वजह से किया, नहीं, ही वाज नॉट किल्ड। हजरत उमर डिड नॉट किल हिम, ही सेड दैट ही हैज इशू विद हिम बिकॉज़ हजरत उमर रिमेन्ड इंजर्ड फॉर फ्यू डेज एंड हजरत उमर डिड नॉट आस्क हिम। हजरत अली पे जिसने अटैक किया था ना, ही वाज किल्ड। उसका रीजन ये कि हजरत उमर के ऊपर जिसने अटैक किया उसका पर्सनल इशू हजरत उमर से था कि ही इज नॉट गिविंग मी फेवर। Hazrat Umar said that don't harm them and leave him. So he was not harmed and attacked afterwards. ठीक हो गया? All right? Clear? ठीक है. Done for today. Take care. Allah Hafiz. सर जी जी बोले। अबू लुलु फिरोज ने जब वो